A very good morning to all my dear students. So here we are in the class of economics. We were on chapter number first of microeconomics, right? In our last class, we have discussed something about PPC. From last 2-3 classes, we are on the same topic, that is production possibility curve, and upcoming classes will also relate with this topic only. This is a topic which needs at least 5 to 6 classes. So have a look. I'm just recalling the things which we have discussed about the production possibility curve. Number one, we have discussed its meaning. Then after the assumptions, then the table and diagram. Then we have discussed the two main properties of production possibility curve. Then the concept of marginal rate of substitution along with PPC, right? Last class में particularly we have discussed about the three different types of production possibility curves that can be drawn. Number one, concave, when its slope is increasing, right? When for gaining one more unit of X, a producer is sacrificing more and more of good Y. Number two, a straight line PPC, when the ratio was constant. When every time for gaining one additional unit of good X, the sacrifice was constant. The table was 1, 2, 3, 4, and 5 on X side, and 10, 8, 6, 4, and 2 on Y side. Number three, the convex curve, when the slope is decreasing. When every time for gaining one additional unit of good X, a producer was willing to give up less and less of good Y. ये दोनों सिर्फ हमें थ्योरेटिकली पढ़ने हैं, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. रियलिटी में पीपीसी इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन, nor PPC can be convex to the origin. What is the actual shape of PPC? It is concave to the origin, because opportunity cost, that is the slope of PPC, is always increasing, due to which our PPC curve is a concave curve. Now have a look what is written over here. PPF and opportunity cost. We know the meaning of opportunity cost, right? Cost of next best alternative foregone. Cost of next best alternative foregone means if we are increasing the production of good X, then the rate at which good Y is sacrificed. The number of units of good Y sacrificed will be the opportunity cost of producing good X. देखिए क्या लिखा हुआ है. Opportunity cost of product is the alternate that must be given up to produce that product. Means good X के लिए जो आप give up कर रहे हो, जो alternate को आप sacrifice कर रहे हो, that will be the opportunity cost. Okay, now have a look. The opportunity cost of producing one more butter is fewer guns. अगर मैं butter और gun की बात करूं, तो butter को ज्यादा बनाने के लिए मुझे कुछ gun sacrifice करनी पड़ेगी. कितनी करनी पड़ेगी ये अभी नहीं पता. आगे देखो. As we move E to F, ये जो पीछे बुक में टेबल बना रखी थी ना, उसी की ये बात कर रहे हैं. E पॉइंट से F पॉइंट पे जा रहे हैं, तो 1 बटर के लिए ये 5 गन्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये इन्होंने बता रखा है आपको. ठीक है, हम तो एक सिंपल डायग्राम देखते हैं कुछ इस तरीके का. हमने जो टेबल बनाई थी हम उसको अगर देखें, उसके अकॉर्डिंग वी गॉट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लाइक दिस, राइट. अब मैं अगर यहाँ थी इस पॉइंट पे, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है ये, इस पॉइंट पे, अब मुझे यहाँ आना है इस पॉइंट पे, तो ये इधर इतना इंक्रीमेंट के लिए मुझे यहाँ ये सेक्रीफाइस करना पड़ा. ये इस 1 यूनिट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. इसको बनाने के लिए जो मैं ये सेक्रीफाइस कर रही हूँ, दिस विल बी ट्रीटेड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और अगर मैं बुक के डायग्राम की बात करूं तो आप देखिए जरा, ये यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं दैट when 4 units of butter were produced, a producer was able to produce 12 units of gun. बटर को 4 से 5 करते ही उसको गन को क्या करना पड़ा, 12 से 6 करना पड़ा. It means 6 units are sacrificed. 6 units किसकी? Wait. यहाँ ये 5 guns लिखा हुआ है, ये 6 होगा. अच्छा 11 है, मैंने 12 पे देखा है उसको. 11 है वो, तो 11 पे हम थे. 11 से 6 पे जब हम आए तो हमने 5 यूनिट्स गन की सेक्रीफाइस की इन ऑर्डर टू गेन 1 यूनिट ऑफ बटर. तो ये 5 यूनिट्स ऑफ गन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ बटर. अब देखिए पीपीएफ को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों कहा जाता है. Slope of PPF indicates the ease or difficulty in transforming one good to another. एक गुड को दूसरे से ट्रांसफर कर रहे हैं ना हम, अपनी लैंड पे या अपने लेबर को गन प्रोड्यूस कर रहा था तो अब उससे बटर प्रोड्यूस करवा रहे हैं.
In the given example, when we move down the curve, we transform gun into butter. हम gun को butter में transfer करते जा रहे हैं, gun वाले resources को. And when we move up, we transform butter into gun. अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हम butter को gun में convert कर रहे हैं. Because of the reason PPF is known as transformation curve. इसको transformation curve भी कहा जाता है इसी reason से. Anyone, any questions up to this part? है किसी को कोई doubt या confusion? ओके ऑल राइट देन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, अगेन बहुत सारे केसेस इसमें से आने वाले हैं. चेंज इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. हमने पीपीएफ को इस अजम्पशन पे बनाया है कि हमारे रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दोनों ही कांस्टेंट है. हमारे रिसोर्स और हमारी टेक्नोलॉजी दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है. अगर बाय चांस रिसोर्स या टेक्नोलॉजी में से किसी भी एक वेरिएबल में चेंज आएगा तो पीपीसी या तो शिफ्ट हो जाएगा या फिर रोटेट हो जाएगा. पीपीसी की शिफ्टिंग और रोटेशन हमें पढ़नी है. ये देखिए मैं आपको एक डायग्राम के साथ बता रही हूँ, शिफ्ट किसको कहेंगे और रोटेट किसको कहेंगे. अगर मेरा सिंपल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कुछ इस तरीके का है, ये मेरा एक पीपीसी है, ठीक है. अब मेरा पीपीसी यहां से यहां आ गया, आगे आ गया, इसको कहेंगे शिफ्ट. पीछे चला गया, इसको भी कहेंगे शिफ्ट. आगे वाला फॉरवर्ड शिफ्ट, पीछे वाला बैकवर्ड शिफ्ट, ये शिफ्ट को कहते हैं. और मूवमेंट रोटेशन देखिए कैसे होगा. सपोज मेरा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था, ये सिर्फ एक्स की साइड से आगे आया, ये रोटेशन है. वाई की साइड से सेम टू सेम रहे और एक्स की साइड से आगे आ जाए. ये ऐसा बना हुआ, ये ऐसा हो जाए, सिर्फ एक साइड से आगे आ जाए, या फिर सिर्फ एक साइड से पीछे चला जाए. इधर तो सेम टू सेम और इधर से पीछे चला गया, इसको कहेंगे रोटेशन. क्लियर है. शिफ्टिंग बता दिया है मैंने आपको, पूरा का पूरा कर्व आगे या पीछे आ जाना. और रोटेशन केवल एक साइड पे किसी ना किसी तरीके का मूवमेंट होना. अब हम पढ़ेंगे कब शिफ्ट आता है और कब रोटेशन आता है. हैव अ लुक. PPF is based on the assumption that resource of an economy are fixed. However, in this changing world, the productive capacity of an economy is constantly changing due to increase or decrease in resource. ये कह रहे हैं अभी अगर हम बात करें तो डायनामिक वर्ल्ड में प्रोडक्टिव कैपेसिटी कंटिन्यूअसली बदल रही है. So changes in resource lead to change in PPF. The change in PPF indicate either an increase or decrease in productive capacity. अगर ये change हो गया तो हमारी capacity या तो increase show कर रहा है या decrease. अगर आगे की तरफ आ गया it means हमारी capacity बढ़ गई है. पीछे की तरफ चला गया it means हमारी capacity decrease हो गई है. COVID-19 से इतनी सारी डेथ हुई है तो हमारा PPC पीछे की तरफ चला गया, डिक्रीज हो गया. बहुत सारी फैक्ट्रीज शट डाउन हो गई तो हमारी इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो चुकी है, डिक्रीज हो चुकी है, फॉल हो चुकी है. ठीक है. और अगर मैं बात करूं लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे अनलॉक होगी इकोनॉमी, बहुत सारी नई नई फैक्ट्रीज सेटअप होंगी, तो नई नई फैक्ट्रीज सेटअप होते ही हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी वापस से इंक्रीज हो जाएगी. उसको हम अभी कर्व के साथ पढ़ेंगे. नंबर 1 देखिए, शिफ्ट इन पीपीएफ. PPF will shift when there is a change in productive capacity, resource or technology with respect to both the goods. दोनों goods की resources या technology increase या decrease होंगे एक साथ, तो फिर shift आएगा. दोनों goods का साथ साथ movement. और सिर्फ एक single good की side से कुछ होगा तो rotation आएगा. ठीक है. चलिए अब देखिए shift. The shift in PPF can either be towards the right or left when there is change in resource or technology in respect of both the goods. आगे बुक से बढ़ने से पहले मुझे आप में से कौन बता रहा है ये शिफ्ट कब आएगा, इंक्रीज इन रिसोर्स से या डिक्रीज इन रिसोर्स से, जो मैं अभी स्क्रीन पे ड्रॉ कर रही हूँ. ये मेरा नॉर्मल पीपीएफ था, ये मेरा पीपीएफ आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है. रेज योर हैंड्स फॉर द आंसर्स. ये आगे की तरफ आ गया, क्या इंडिकेट करता है? इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, राइट. इंक्रीज इन रिसोर्सेज को शो कर रहा है. और टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट या बैकवर्डनेस? इंप्रूवमेंट्स, बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट. और अगर मैं बात करूं ब्लू वाला मेरा इनिशियल पीपीसी था और नया पीपीएफ पीछे की तरफ आ गया, ये क्या शो कर रहा है? डिक्रीज, राइट, बिल्कुल डिक्रीज इन रिसोर्सेज को शो कर रहा है.
अब इतना इजी तो नहीं हो सकता जितना दिख रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स है ना। तो ये हमें कंसेप्ट तो सिंपल सा समझना है। केस स्टडीज गिवन होंगी, हमें बहुत सारे केसेस गिवन होंगे, उन केसेस के बेस पे हमें आंसर्स देने होंगे, तो वो भी टफ नहीं है, सिंपल सा है। पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए ये आपको बता रखा है, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ कब आता है, या तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज से। ये शो कर रहा है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंप्रूव हो गई है और अब हम पहले से ज्यादा गुड्स बना पाएंगे, राइट। सो हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर। फाल्गुनी बेटा रीड दिस पार्ट, राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीएफ। Rightward shift in PPF. When there is advancement or upgradation of technology or and the growth of resources in respect to both the goods, then PPF will shift to right. For example, if there is increase in resources for production of butter and guns, we can produce more of both the goods. In such case, existing PPF PP will shift to the right, represented by P1, P1. यस वेरी गुड, हैव अ लुक। क्या कह रहे हैं ये कि ये जो एग्जिस्टिंग पी कर्व था ये आगे की तरफ आ जाएगा, P1 बन जाएगा। दो सिचुएशंस में ऐसा होता है, याद रखिएगा, या तो ओवरऑल रिसोर्सेज का इंक्रीज हो जाना, या फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आ जाना। इन दोनों ही केसेस में ये आगे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब ग्रोथ इन रिसोर्सेज कब हो सकता है, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेस, राइट, डिस्कवरी ऑफ न्यू नेचुरल रिसोर्स। अब आपको केस स्टडी में दे सकते हैं कि सपोज हमने नए ऑयल रिजर्व डिस्कवर कर लिए, अब हमने न्यू रिजर्व डिस्कवर किए, तो हमारी प्रोडक्शन क्या ने हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया, यानी हमारी कंट्री में कैपिटल का इनफ्लो हो रहा है। कैपिटल बढ़ गई यानी रिसोर्स बढ़ गए, रिसोर्स बढ़ गए तो पीपीएफ आगे आ जाएगा। लेबर फोर्स बढ़ गई तो भी आगे आ जाएगा, राइट। फिर इंक्रीज क्वालिटी भी हो सकती है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स की स्किल डेवलपमेंट। ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, सारी केसेस इसी से रिलेटेड होते हैं। ह्यूमन बींग्स का स्किल इंप्रूव हो गया तो क्वालिटी इंप्रूव हुई तो भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी। अब अभी जैसे कोविड-19 से क्वालिटी थोड़ी सी डिटेरियोरेट हुई है तो पीपीसी पीछे की तरफ जा रहा होगा। फिर देखिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर गवर्नमेंट ने सेटअप की, ये पीछे क्वेश्चंस में आएगा इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। इम्प्रूव्ड हाइजीनिक एनवायरनमेंट इम्प्रूव हो गया हो क्लीन इंडिया मिशन से या स्वच्छ भारत मिशन से, तो लोगों की क्वालिटी इंप्रूव होगी, और क्वालिटी इंप्रूव होगी तो आगे प्रोडक्शन भी बढ़ पाएगा। फिर देखिए लेफ्टवर्ड शिफ्ट, आई होप ये आप सबको पहले से ही पता होगा। कब आएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन रिसोर्स, और वी कैन से व्हेनेवर देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन। लेकिन दोनों गुड्स के साथ, जैसे अर्थक्वेक की वजह से रिसोर्स डिस्ट्रक्शन हो गया, या फिर और किसी भी रिसोर्सेज से हमारे और किसी भी रीजन से हमारे रिसोर्सेज अगर डैमेज हो गए। ये देखिए पीपीएफ विल शिफ्ट बैकवर्ड, हमारा जो इनिशियल कर्व था वो पीछे की तरफ आएगा, और ये इंडिकेट करेगा कि नाउ वी कैन प्रोड्यूस लेस गुड्स बाय यूजिंग द गिवन रिसोर्सेज। पहले के कंपैरेटिवली अब हम कुछ कम गुड्स बना पाएंगे। सो आई होप ये जो शिफ्टिंग वाला पार्ट है ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। If yes, then show me a thumbs up. Then after we will move towards the next part, that is rotation. रोटेशन भी मूव करें उससे पहले आप मुझे बता दीजिए शिफ्ट इन पीपीसी सबको क्लियर हो गया? ओके, वेल एंड गुड, वेरी गुड, हैव अ लुक, आगे बढ़ते हैं। रोटेशन कब आएगा? जब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी, या तो गुड एक्स या फिर गुड वाई, गुड एक्स के रिसोर्सेज बढ़ जाएं या कम हो जाएं, गुड वाई के रिसोर्सेज बढ़ जाएं या कम हो जाएं, इनसे आएगा हमारा रोटेशन। सो हैव अ लुक, it happens when there is change in productive capacity with respect to only one good. The rotation can be either for the commodity on x-axis or for the commodity on y-axis. देखिए जरा, x-axis की साइड राइटवर्ड रोटेशन भी आ सकता है, लेफ्टवर्ड भी आ सकता है, y के लिए भी राइटवर्ड भी आ सकता है, लेफ्टवर्ड भी आ सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। राइटवर्ड कब होगा? जब रिसोर्स इंक्रीज हो जाए, गुड एक्स को प्रोड्यूस करने वाले रिसोर्स इंक्रीज हो जाए, और लेफ्टवर्ड जब कम हो जाए। फिर देखिए
y के लिए भी सेम चीज। कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिए फटाफट। इसको कौन रीड करेगा? हैंड रेज कीजिए। हु इज गोइंग टू रीड द पार्ट? यस, करण विल रीड। ओके करण। Ma'am, rotation for commodity on x-axis. यस When there is a technological improvement or an increase in resources for production of the commodity on the x-axis, say butter, then PPF will rotate from AB to AC. However, in case of technological degradation or decrease in resources for production of butter, PPF will rotate to the left from AB to AD. यस, वेरी गुड। हैव अ लुक। क्या कह रहे हैं ये? टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट और इंक्रीज इन रिसोर्स ओनली फॉर गुड एक्स विल कॉज अ राइटवर्ड रोटेशन फ्रॉम द साइड ऑफ गुड एक्स, और टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन और डिक्रीज इन रिसोर्सेज विल कॉज अ लेफ्टवर्ड रोटेशन, एंड सेम इज विद गुड बाय। अब देखिए, अगर पीपीएफ का एक ओवरव्यू ले लें तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बस ये लास्ट पार्ट है चैप्टर का, ऑलमोस्ट कवर कर लिया है हमने। ये अगर एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसके ऊपर का पॉइंट और इसके अंदर का पॉइंट ये शो कर रहे हैं कि इतना प्रोडक्शन पॉसिबल है। ऊपर के सारे पॉइंट बता रहे हैं कि रिसोर्सेस का हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया। अंदर के पॉइंट्स बताएंगे कि हमारा रिसोर्स अनयूटिलाइज्ड है। बाहर का पॉइंट अनअटेनेबल रहेगा विद द अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। हाँ, अगर कोई अजम्पशन ब्रेक होता है और रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं या टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आता है तो पीपीसी या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है। फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पीपीसी केवल हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को शो करता है। हर इकोनॉमी हमेशा पीपीसी पे रहे ये जरूरी नहीं है। ऑपरेशन हमेशा पीपीसी के ऊपर नहीं रहता है इकोनॉमी का, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वन बाय वन यू हैव टू रीड द पॉइंट एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट। सबसे पहला पॉइंट कौन बता रहा है? फर्स्ट पॉइंट, हु विल एक्सप्लेन? रेज योर हैंड्स। बहुत इजी सा है। Yes, Lakshya will tell us. Lakshya Modi, raise your hand so that I can unmute you. Yes, beta, explain the first point. चलिए, लक्ष्य का ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा। फाल्गुनी, एक्सप्लेन इट। मैम, इसमें फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जब पीपीएफ का स्लोप नीचे की तरफ होगा, डाउनवर्ड्स होगा, तो फिर ना किसी एक गुड्स के अंदर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और दूसरे में डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल, हैव अ लुक। ये फर्स्ट पॉइंट में आपको बता रहे हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। मैं बात करूं तो ये आपको रिवाइज करवा रहे हैं पीपीसी वाला पूरा टॉपिक। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर एंटायर डाउनवर्ड स्लोपिंग है। कोई भी कर्व इकोनॉमिक्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग तभी होता है जब गुड एक्स का प्रोडक्शन करने के लिए गुड वाई का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़े। तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ वन गुड रिक्वायर्स डिक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ अदर। एक का इंक्रीज करोगे तो दूसरे का डिक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, पीपीएफ इज कॉन्केव शेप ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। कॉन्केव है, ओरिजिन से कॉन्केव। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग है। इट मींस every time for increasing the production of good X, a producer will have to sacrifice more and more units of good Y, more and more units। इसी की वजह से कॉन्केव है, और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जब भी इस चैप्टर का टेस्ट होगा ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली होगा। Why PPC is concave? So it is concave because of increasing MRT, which means for increasing the production of good X, more and more units of good Y are to be sacrificed. Next, ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है एक गुड से अनदर का रिसोर्सेस को डाइवर्ट करके, इसलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट, PPF shows maximum available possibilities. The exact point of operation depends on how well the resources of an economy are used. यानी PPF तो सिर्फ कैपेसिटी को बता रहा है, एक्चुअली हम कहाँ रहेंगे ये डिपेंड करेगा हमारे रिसोर्स यूटिलाइजेशन पे। हमने कितना एफिशिएंटली रिसोर्सेस को यूज किया उस पर डिपेंड करेगा एक्चुअल पॉइंट ऑफ ऑपरेशन। आगे देखिए, इकोनॉमी पीपीएफ पे है, इट मींस रिसोर्सेस फुल्ली और एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। इसके अंदर है, इट मींस रिसोर्सेस फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे।
फिर इकोनॉमी पीपीएफ के बाहर नहीं ऑपरेट कर सकती, वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस रहते हैं, और बाहर तब आ सकती है, शिफ्ट हो सकती है अगर रिसोर्सेज इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, है ना। फॉरवर्ड शिफ्ट होगी तो रिसोर्स और कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट हो कैपेसिटी डिक्रीज। चैप्टर कंप्लीट है। एनीवन एनी डाउट्स? कुछ चैप्टर का कोई टॉपिक ऐसा है जो किसी को समझ में नहीं आया तो पहले आप बताएं। एनीवन? नो? वेल एंड गुड। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। यस करण वांट टू आस्क समथिंग। यस करण। मैम ये मैम पीपीसी मैम कभी मैम स्ट्रेट क्यों नहीं हो सकती मैम? बेटा क्योंकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि एक गुड को गेन करने के लिए आप दूसरे का सेम रेशियो में सेक्रीफाइस करो। हमारा जो अजम्पशन है ना कि रिसोर्स सारे गुड्स में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। लेबर को अगर आप गुड एक्स प्रोड्यूस करवाना चाहते हो और गुड वाई से विड्रॉ करोगे तो वो गुड वाई उतना अच्छा नहीं बना, गुड एक्स उतना अच्छा नहीं बना पाएगा जितना वो गुड वाई प्रोड्यूस करता है। तो आपका सेक्रीफाइस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। ओके। अगर एग्जामिनर ने हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया जिसमें रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तो फिर स्ट्रेट लाइन बनेगा। अभी देखते हैं। Deepak is working as a sales manager at a salary of rupees 1 lakh per month. He received 2 more job offers. He got an offer of 70,000 from Reliance and an offer of 85,000 from Tata. What is his opportunity cost of working as a sales manager? आप बताइए जरा। 1 लाख में ऑलरेडी काम कर रहा है, 2 और ऑफर है, 70 और 85। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। तो 1 लाख के बाद सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव कौन सा है? यस फाल्गुनी। यस बेटा, यू विल बी एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव है रिलायंस इंडस्ट्री का जॉब ऑफर, क्योंकि वो 85,000 है और 1 लाख के बाद सबसे बेस्ट कॉस्ट 85,000 ही मिल सकती है उसे। बट ये उसको रिलायंस से नहीं मिला है, ये ऑफर उसको मिला है टाटा इंडस्ट्री से। रिलायंस से तो उसको 70 का मिला है। ओके ओके मैम। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A farmer produces 100 kg of wheat on a piece of land with the help of given quantity of resource. The farmer can also produce 70 kg of rice with same quantity of resource. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों जैसा कि वो wheat बना रहा है 100 kg बट वो 70 kg राइस भी बना सकता है। तो आपको तो बताना है wheat बनाने के लिए उसने क्या सेक्रीफाइस किया। He has sacrificed 70 kgs of rice. बिल्कुल। चलिए इसका सॉल्यूशन करके बताइए जल्दी से। रजिस्टर और पेन उठाइए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। You have to calculate the marginal opportunity cost. वही रेशियो निकाल लीजिए। रेशियो की जो आगे वाली टर्म्स होगी वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। कैसे निकालेंगे? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। कमोडिटी ए गुड एक्स है और कमोडिटी बी गुड वाई है। एमओसी बताइए मुझे निकाल के। Yes, Himanshu is ready with the answers. Very good. Pankaj is also ready with the answers. Yes, Himanshu, unmute and speak. मैम पहले में तो 0 रहेगी, पहले में डैश रहेगी, बिल्कुल सही। फिर मैम 1 2 3 4 एंड 5। बिल्कुल 1 2 3 4 एंड 5 कैसे निकाला हमने? देखिए 1 यूनिट सेक्रीफाइस हो रही है, 15 बना रहे थे 14 ही बना रहे हैं तो 1, फिर 2 का सेक्रीफाइस हो रहा है तो 2, फिर 3 का तो 3, फिर 4 का और फिर 5 का। तो ये हमने निकाल लिया है एमओसी। बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी। आगे बढ़िए। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं निकल सकती, यहाँ पे होगी। बताइए आप। जिस कमोडिटी को इंक्रीज करते हैं ना वो गुड एक्स होता है और जो सेक्रीफाइस हो रहा है वो वाई है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यस करण, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम ये मैम 6:10 है मैम, 3:5। दोबारा देखो। 4 है ना बेटा, 6 का है। मैम 4:10। हाँ 4:10, 4:10। गेन 4 हो रहा है, सेक्रीफाइस 10 हो रहा है, तो लिखेंगे कैसे? 10:4। यानी कि अगर हम नंबर्स में निकालें तो सेक्रीफाइस अपॉन गेन, सेक्रीफाइस हो रहा है 10 का, गेन तो पॉइंट्स में आ जाएगा 2.5 हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आपको ये ध्यान रखना है
सेक्रीफाइस अपॉन गेन करते हैं हमेशा, सेक्रीफाइस अपॉन गेन। सेक्रीफाइस हो रहा है गुड ए का और गेन हो रहा है गुड बी का। नेक्स्ट एमओसी कैलकुलेट करना है, करते जाइए। डिवाइड करना पड़ेगा प्रॉपर। देखिए गुड एक्स 0, 10, 20, 30, 40, गुड वाई 200, 180, 140, 80 एंड 0। तो सबसे पहले तो डैश आ गया, फिर गेन है 20 का, सॉरी गेन है 10 का और सेक्रीफाइस है 20 का। 10 अपॉन में आ जाएगा और 20 ऊपर आ जाएगा। सेक्रीफाइस 20 अपॉन 10, 2 आ गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देन सेक्रीफाइस 40 अपॉन गेन 10, 4 आ गई। फिर सेक्रीफाइस है आपका 60 और गेन है 10, तो 6 आ गई। और वापस से सेक्रीफाइस 80 और गेन है 10, तो अगेन 8 आ गई। प्रयास, do you want to ask something or have you raised your hand for answer? You can unmute yourself. मैम मेरा नेटवर्क इशू था तो थोड़ा समझ नहीं आया, तो एक बार वापस। ये वाला क्वेश्चन बेटा, यस मैम। हाँ वाला। यहाँ पे ये बोल रहे हैं गुड एक्स को हमने 0 से 10 किया, 10 to 20, 20 to 30 एंड 30 to 40। गुड एक्स की बता रहे हैं कैसे आपने क्वांटिटीज को इंक्रीज किया। गुड वाई बता रहे हैं पहले आप 200 प्रोड्यूस कर रहे थे, देन आफ्टर 180, 140, ये रेशियो बता रहे हैं। अब आपको एमओसी निकालना है। फॉर्मूला रहता है यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पे देखिए सेक्रीफाइस कितना हो रहा है। आप जब यहाँ मूव किया आपने तो सेक्रीफाइस हुआ 20 यूनिट्स का और गेन हुआ 10 यूनिट्स का, so 20 upon 10 will be 2. Then again look at the sacrifice, 40 units, gain 10 units, 40 upon 10, 4. ऐसे हमने कंटिन्यू किया तो हमारे पास आ गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज इट ओके? यस मैम। अगर ये रेशियो पूछते, एमआरटी पूछते, एमओसी पूछा है तो हमने ये निकाला है। एमआरटी पूछते तो हम लिखते 2:1, 20:10 करते तो वो 2:1 आ जाता है। एमआरटी अगर पूछा होता तो। आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। The following table depicts the production possibilities of good X and good Y. This time you have to draw a PPC. आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना है और फिर आपको बताना है लेबल अ पॉइंट F inside the curve. What does this indicate? अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आता है ये एग्जाम में, 4 मार्क्स में, हो सकता है 6 में भी आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। बहुत आसान है, मजेदार क्वेश्चन है, करते जाइए साथ साथ में। क्या क्या पूछ रहे हैं, पहले तो एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना है, फिर इसके अंदर एक पॉइंट लगाना है एफ और आपको बताना है ये क्या इंडिकेट करता है। फिर एक पॉइंट लगाना है जी इसके बाहर, वो क्या इंडिकेट करता है। और फिर बोलना है व्हाट मस्ट अकर सो दैट इकोनॉमी कैन अटेन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एज इंडिकेटेड बाय पॉइंट जी। जी तक आने के लिए इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा। तो पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ, पीपीसी बनाती हूँ। 10974, आप मुझे बता देना कि 10974 है। मैं ब्लैंक स्पेस सर्च करके यहाँ डायग्राम बना रही हूँ। हैव अ लुक। गुड एक्स से 1, 2, 3, 4, 4 यूनिट्स एक्स की है। गुड वाई की 10 तक है, 1, 2, 10 तक है, तो मैं 2, 2 ले रही हूँ। 2, 4, 6, 8, 10। चलिए पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं। 10970 है। ओके देखिए, मैं यहाँ पे बाकी चीजें मार्क नहीं कर रही हूँ, आपको एग्जामिनेशन में सब कुछ मार्क करना है। गुड एक्स, गुड वाई, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये वाई एक्सेस हो गया, ये एक्स एक्सेस हो गया, सब कुछ। अब देखिए पहला कॉम्बिनेशन, y की 10 यूनिट्स और x की 0 यूनिट। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया। नेक्स्ट x की 1 और y की 9, ये x की 1 यहाँ से स्ट्रेट और y की 9 यहाँ पे आ जाएगी सेंटर में, 8 और 10 के बीच में।
थर्ड, x की 2 और y की 7, तो ये 6 और 8 के बीच में 7 हो गया और x का 2 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट 4 and 3, तो ये x की 3 और ये y की 4, और फिर ये x की 4 और y की 0। ये बन गया मेरा पीपीसी। अब आपको क्या बोल रहे हैं, पीपीसी के अंदर एक पॉइंट लगाओ, मैंने लगा दिया। आपको बोल रहे हैं ये पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फिर कह रहे हैं इसके बाहर पॉइंट लगाओ, लगा दिया। ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वेयर वी कांट रीच, पहुंच ही नहीं सकते यहाँ तक। तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्या करें जो जी तक पहुंच जाए, तो रिसोर्सेस को इंक्रीज कर दो। गिवन रिसोर्स में तो नहीं पहुंच सकते, रिसोर्स को इंक्रीज कर दो, पहुंच जाओगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बता रहे हैं, ये ए टू ई इंडिकेट करते हैं फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। फिर एफ के अंदर इंडिकेशन है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, और जी इंडिकेट करता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। जी तक आने के लिए या तो रिसोर्स इंक्रीज करो या टेक्नोलॉजी इंप्रूव करो। एनीवन, एनी डाउट? सब कुछ समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग पॉसिबिलिटीज गिवन है। कैलकुलेट एमआरटी, एमआरटी यानी रेशियो के फॉर्म में निकालना है हमें। अगेन गेन अपॉन सेक्रीफाइस, यहाँ गुड वाई को गेन कर रहे हैं और गुड एक्स को सेक्रीफाइस। आपको तो सॉरी मैंने उल्टा बोला, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, मैंने गेन अपॉन सेक्रीफाइस बोल दिया, दैट वाज रॉन्ग। सेक्रीफाइस अपॉन गेन करते हैं, तो ये हो गया। फिर आपको पीपीएफ बनाना है और फिर पीपीएफ की शेप पे कमेंट करना है। शेप देखिए इस बार कॉन्वेक्स आ रही है क्योंकि एमआरटी डिक्रीजिंग है, तो आपको बताना है कि ये कॉन्वेक्स है तो क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, आप खुद करके देखेंगे। ये नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चंस गिवन है ये आप खुद करके देखेंगे। जैसे इसमें देखिए, एक पीपीसी बनाना है आपको और उसकी शेप पे कमेंट करना है रीजन के साथ। रेशियो कांस्टेंट आ रहा है तो पीपीसी क्या रहेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि रेशियो कांस्टेंट है। ये आप खुद पढ़ के देखें। चैप्टर इज कंप्लीटेड फ्रॉम माय साइड। टुमारो वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस चैप्टर, कुछ केस स्टडीज जिसमें हमें पता चले कब पीपीसी शिफ्ट होगा और कब रोटेट होगा। आप सब यहाँ तक अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। मुझे प्रैक्टिस फाइल की आंसर जरूर फॉरवर्ड कीजिए। जो प्रैक्टिस फाइल हमने प्रिपेयर की थी उसके आंसर्स अभी आए नहीं है आप सबकी साइड से, तो उनके आंसर्स फॉरवर्ड कीजिए। एनीवन, एनी क्वेश्चन? यस करण, अनम्यूट एंड स्पीक। मैम ये क्लास टेस्ट कब से चालू होंगे मैम? बेटा आपके मोस्ट प्रोबेबली या तो नेक्स्ट वीक में, या फिर आप अभी तो ये मान लीजिए जो प्रैक्टिस टेस्ट हो रहे हैं यही आपकी क्लास टेस्ट है जो मैं प्रैक्टिस के लिए फाइल सेंड कर दूँ, और ऑफिशियली आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे वेरी सून, क्योंकि अभी 11th में ज्यादा सिलेबस नहीं हुआ है तो हमने वीकली वाला 11th के लिए नहीं रख रखा, बाकी क्लासेस का चल रहा है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम नेक्स्ट वीक। और कुछ? चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में थोड़ी ही देर में बिजनेस स्टडीज के लिए। Have a nice day everyone, enjoy yourself and make sure that you have to recall all these topics.